بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر وہیں ٹھوکر انسان کے سیدھے دل پر لگتی ہے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ اپنے رزق کی خود حفاظت کرو ورنہ تم اسے ضائع کر دو گے۔ کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں تو بے پھل درخت کو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا۔ صبر کرو، چاہے ہر دروازہ تمہیں بند ہی کیوں نہ دکھائی دے رہا ہو۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اس طرح تم اللہ کا قرب حاصل کر لو گے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام لینے سے غافل کر دیتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، کیونکہ وقت ایک نہ ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ صبر رکھو، کیونکہ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے۔ سمجھدار انسان بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ اس دنیا میں انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ صبر زندگی کے مقصد کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کو کھولا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے بھی مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی رب ہے، لیکن میں اسے کیسے بھول جاتا ہوں۔ اس دنیا میں صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس پر حکمرانی کرنا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے اور وہیں نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لے جانا پڑتا ہے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگیں۔ یہ دنیا سیکھنے کی جگہ ہے، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو یہ بات سمجھتے ہیں۔ جس لمحے آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہی لمحہ آپ کی سوچ اور آپ کی عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دنیا میں لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خوف خود میں کسی شے کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈو، بلکہ ذرا سی گردن نیچے کر لو اور دیکھنا رب تمہیں اپنے دل میں ملے گا۔ اس دنیا میں 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: قرض، مرض اور فرض۔ رابطے حد سے گزر جائیں تو غم ملتا ہے، اس لیے لوگوں سے ہمیشہ دوری اختیار کریں۔
اگر مشکل آپ کے دروازے پر دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والے یہاں نہیں رہیں گے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے اسے کامیابی کہتے ہیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ مولا علی نے فرمایا کہ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا ایک اعلیٰ ظرفی ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو تمہارے مردوں نے دیکھا ہے تو یقیناً تم بیتاب اور پریشان ہو جاؤ گے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کو اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا دعا کا دروازہ کھولا رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگ جاتے ہیں، اور یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ جو شخص کسی کا حق لے لے گا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کی نفس سے، اس کے مال سے یا اس کے اولاد سے۔ مولا علی نے فرمایا کہ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے دل ملتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ دل بڑے مشکل سے ملتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا خلوص کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا محتاج بنا دیتا ہے۔ ہم پہلے اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر ہم ہی انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں اپنی آج برباد نہ کر۔ اس دنیا میں جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے بدن سے طاقت کم کر دی جاتی ہے، جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو اولاد سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کا احترام کریں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے اکثر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے اللہ کے آگے جھکو، پھر دیکھنا وہ اللہ تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی
اور बहतान लगाने जैसी साजिशों में ज़िंदगी भर मुब्तला रहते हैं। इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके अच्छा इखलाक है। घर सोना चांदी से नहीं बल्कि हमेशा अच्छे अखलाक से आबाद होता है। अपनी सोच को बदलो, फिर देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनाहगार की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। इस दुनिया में समझदार इंसान गैरों से बातें सुनकर अपनों से बहस नहीं करता। कहानियों के आखिर में सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ज़िंदगी में मसाइल ख़त्म नहीं होते बल्कि इंसान ख़त्म हो जाता है। इस दुनिया में खुदा का बंदा वही है जो बंदों का खुदा ना बने। ला हासिल की तमन्ना खुद की ज़ात के साथ वो ज़ाती है जिसमें इंसान हर वक्त अपनी हार का दुख मनाता रहता है। शैतान सबसे पहले इंसान की शर्म व हया पर ज़र्ब लगाता है ताकि गुनाह को आसानी से अंजाम दे सके। आँखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। बाज़ औक़ात कोई हमारी खामोशी का भी मुस्तहिक नहीं होता और हम उन्हें अपने एहसासात का तर्जुमा सुना रहे होते हैं। इस कायनात में हकीकी इश्क में ना तो रुसवाई है और ना तन्हाई। बहुत दूर तक इंसान देख लेता है मगर उसी इंसान को अपना गिरबान नजर नहीं आता। कायनात के राज उसी पर खुलते हैं जिस पर अपनी ज़ात का राज खुल चुका हो। इस दुनिया में छोटी सोच और छोटी चीज़ें हमेशा उछलती ज़्यादा हैं। किसी से भी हसद करना बेकार है क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है वो तुमसे छीना हुआ नहीं है। खामोशी वो ख़जाना है जिसमें हर कामयाबी का राज मौजूद है। तलाश में बीत गई सारी ज़िंदगी, लेकिन अब पता चला कि खुद से बड़ा हमसफ़र कोई नहीं। इंसान को अगर अपनी हैसियत का इल्म हो जाए तो वो पागल हो जाएगा या फ़ौरन मर जाएगा। रवैयों की तकलीफ़ जब रूह में उतर जाए तो अल्फाज उसका इलाज नहीं कर सकते। अगर कोई आपके गलत रवैये, सवाल या जवाब पर खामोशी इख्तियार कर लेता है तो समझ लेना वो आपसे किरदार में कहीं बड़ा है। इस दुनिया में किसी को तकलीफ़ या झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि इस दुनिया में बहाने ख़त्म हो जाते हैं। मोहब्बत और दोस्ती ये दोनों चीज़ें हर तूफ़ान का सामना कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं और वो है गलतफहमी। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उन्हें फ़ायदा पहुंचाते रहें। ज़िंदगी में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं और बाकी के आधे दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आते हैं। इस दुनिया में झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। दीवारों के कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है, क्योंकि ये इंसान तो अपनी आखिरी गुसल तक का मोहताज है। करीबी रिश्तों की तकलीफ़ या अज़ियत दरअसल अल्लाह की तरफ लो लगाने का एक ज़रिया होती है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती हैं जो उसके नसीब में भी नहीं लिखी होती। तुम्हारा दिल समंदर के मानिंद वसी है, इसलिए जाओ खुद को अपनी पोशीदा वसीयतों में तलाश करो। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए, क्योंकि अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अज़दाहा बन जाएगा और तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। तुझे क्या बताऊं मेरे हमनशी, तेरे सामने मेरा हाल है।
तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। बुजुर्ग कहते हैं, फसल रंग बदले तो काट लो और लोग रंग बदले तो उन्हें छोड़ दो। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और लोग हमें गलत समझें। हज़रत अली ने फरमाया, हिर्स और लालच से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इंसान को जो मिलना होता है वो उसे मिलकर रहता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह तराजू होता है, क्योंकि वो हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि इस बंदे से मुझे कितना फ़ायदा होगा। एक तुम्हारा रब ही तो है जो तुम्हारी हजार नादानियों पर भी पर्दा डाल देता है। दाग दाग मत कहो, क्योंकि यहाँ सब दागदार हैं। बेदाग तो सिर्फ वही है जो तुम्हारा परवरदिगार है। नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, क्योंकि जिसे ज़ौक़ है वो मज़ा जानता है। अगरचे इंसान को मुकद्दर से ज़्यादा रिस्क नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी रिस्क की तलाश में घूमता रहता है। इस दुनिया में जो तुझसे वाबस्ता नहीं तो उससे वाबस्ता ना हो। इस दुनिया में जिसको अपने छोड़ देते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। जो शख्स तुम्हें अच्छा लगे उससे कम मिला करो, और जो बहुत अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, फिर देखना कभी दुखी नहीं रहोगे। ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिशों की तरह नहीं, क्योंकि ज़रूरतें फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं हो पाती। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपने मामले अल्लाह पर छोड़ देते हैं। हमेशा उन लोगों को चुना करिए जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। इस दुनिया में जो दूसरों के गम से लाताल्लुक है वो शख्स इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। अगर तुम साफ आईना चाहते हो तो अपने आप को देखो और हर उस सच्चाई को देखो जिसका अक्स आईना दिखाए। अक्लमंद पर लाजिम है कि हमेशा मशवरा लेता रहे, ताकि महज अपनी बात पर अड़े रहने की आदत से बाज रहे। तवाज़ो ये है कि आप लोगों को वो चीज़ दें जिन्हें आप चाहते हो कि लोग आपको दें। अपने आप को दाना ना समझो, बल्कि हमेशा अपने अंदर नादानियाँ तलाश करते रहो, और इस तरह तुम अपनी इस्लाह करते रहोगे। इंसान की नेकोकारी और खुश मिजाजी घरों को आबाद और उम्र को तवील करती है। मौला अली फरमाते हैं, अपने दोस्त से इजहार मोहब्बत करते रहो ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगे। जो तुमसे मोहब्बत करता है वो तुम्हें बुराई से रोकता है, और जो तुम्हारा दुश्मन होता है वो तुम्हें उभारता है। जिस तरह तुम ज़माने की आने वाली मुसीबतों से पनाह मांगते हो, उसी तरह सरकश बनाने वाली खसलतों से अल्लाह ताला से पनाह मांगो। गफलत के लिए यही काफ़ी है कि इंसान उम्र को ऐसे कामों में ज़ाय कर दे जो उसे निजात नहीं दिला सकें। जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ़ करो, जो तुमसे कटे तुम उससे जोड़ो, और जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। जो इंसान अपना मामला खुदा से साफ रखता है और गलत काम नहीं करता तो उसका मामला किसी से ख़राब नहीं होगा। साहिबे अकल को अदाब की उतनी ही ज़रूरत है जितनी की खेती को बारिश की। इस दुनिया में जो अल्लाह की तकसीम से खुश होता है वो दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर गमज़दा नहीं होता। अल्लाह ताला जब किसी को पसंद करता है तो उसकी नसीहत इबरतों के ज़रिए करता है। मौला अली ने फरमाया कि अपने अक्लमंद दुश्मन पर अपने जाहिल दोस्त से ज़्यादा भरोसा करो।
इस दुनिया में बेहतरीन इख्तियार नेक लोगों की सोहबत और बुरे लोगों से जुदाई है। असल सब्र ये है कि इंसान परेशानियों को बर्दाश्त करे और गुस्सा दिलाने वाली बातों के मुकाबले में बुरदुआर रहे। जुल्म और जहालत ऐसी आदतें हैं जिनका नतीजा बुराई है। अच्छे इखलाक वाला शख्स गैरों के लिए अपना होता है और बद इखलाक शख्स खुद अपने लिए गैर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक अफजल वही होता है जिसकी खैर ख्वाही आम हो, यानी वो हर शख्स की भलाई चाहता हो। जैसा कि हम जानते हैं कि रोज़ा इस्लाम के 5 अरकान में से एक है, जिसे अरबी में साम कहते हैं। मुसलमान इस्लामी साल के मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक में सभी मुसलमान रोज़ा रखते हैं। रोज़े में मुसलमान सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाना और पीने से बाज रहते हैं और रोज़ा रखने के लिए सुबह सादिक से पहले खाना खाया जाता है, जिसे सहरी कहते हैं, और जिसके बाद नमाज फ़ज्र अदा की जाती है, जबकि गुरूब आफ्ताब के वक्त अज़ान मगरिब के साथ रोज़ा खोल लिया जाता है और जिसे इफ्तार करना कहते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी सच्ची किताब में ईमान वालों को कुछ इस तरह मुखातिब किया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किए हैं, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन सको। रोज़ा सिर्फ़ इंसान को अल्लाह ताला के करीब ही नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ रोज़े के कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी हैं जिनको जानकर आप ख़ुद को एक रोज़ेदार होने पर फ़ख्र महसूस करेंगे। रोज़ा इस्लामी अरकान में से चौथा रुकन है और रोज़ा जिस्मानी सेहत को बरकरार रखता है, बल्कि इसे बढ़ाता भी है। रोज़े से दिल की पाकी और रूह की सफाई और नफ्स की तराहत हासिल होती है। रोज़ा दौलतमंदों को गरीबों के हालात से अमली तौर पर बाखबर रखता है। रोज़ा शिकम सहरों और फाका मस्तों को एक बराबर खड़ा कर देता है। रोज़ा जिस्म को मुश्किलात का आदी और सख्तियों का खूगर बनाता है। रोज़े से भूख और प्यास में तहम्मुल और सब्र की दौलत मिलती है। रोज़े से इंसान को दिमागी और रूहानी यकसुई हासिल होती है और रोज़ा बहुत से गुनाहों से इंसान को महफूज रखता है। रोज़ा नेक कामों के लिए ज़ौक़ और शौक़ इंसान के अंदर पैदा करता है, क्योंकि रोज़ा एक मख्फी और ख़ामोश इबादत है जो कि रियाकारी और नुमाइश से बरी है। कुदरती मुश्किलात को हल करने और आफात को टालने के लिए रोज़ा एक बेहतरीन ज़रिया है। इन फ़वाइद के अलावा बहुत और फ़ायदे भी हैं, जिनका ज़िक्र हदीस में कुछ इस तरह मौजूद है कि बुखारी और मुस्लिम में हमें यह हदीस मिलती है कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मिलने के वक्त। और रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा है। जाहिल की एक खुसूसियत ये भी है कि वो पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। मायूसी इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन है। मुश्किल वक्त इंसान की हिम्मत का इम्तिहान लेने आता है। ज़बान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। सब कहने की बातें हैं, कोई किसी का दर्द नहीं समझता सिवाय अल्लाह के। या अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। अगर नमाज के वक्त
तवाफ़ काबा रुक सकता है तो तेरे कारोबार और काम क्यों नहीं। अगर तुमने नमाज छोड़ी तो समझ लो कि राहत और बरकत तुमसे छूट गई। इस दुनिया में जो शख्स अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लेता है तो उसे ज़रूर सीधी राह की तरफ हिदायत की जाती है। बादशाहों के पास बैठने से कभी बादशाहत नहीं मिला करती, लेकिन औलिया अल्लाह की एक ही निगाह इंसान को बादशाह बना देती है। पीर के दिल में नक्शे खुदाबंदी होता है और मुरीद के दिल पर पीर का नक्श उभरता है। इंसान को जितना लगाव रोजी से है, अगर उतना लगाव रिस्क देने वाले से होता तो उसका मकाम फरिश्तों से बड़ा हो जाता। अल्लाह से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता और मेरा तो एक ही अल्लाह है, पर हाय अफसोस मैं उसे भी भूल जाता हूँ। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। मौलाना रूमी कहते हैं कि तकदीर के लिखे से छुटकारा हासिल करने का रास्ता फ़कत आजिज़ी है। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है, और तुझे समंदर तलाश कर रहा है लेकिन तू नहर की तलाश में है। सर हो सजदे में दिल दगाबाजी में हो तो भला ऐसे सजदों से कैसे खुदा राजी हो। अपने किरदार पर डालकर पर्दा ए इकबाल हर शख्स कह रहा है कि ज़माना ख़राब है। अगर 1000 मुनाफिक मिलकर आपकी जड़ें भी काट दें और अगर कोई एक अच्छा ख़ानदानी और मुखलिस दोस्त आपको सहारा दे तो यकीन मानिए तो आप कभी गिन नहीं सकते। कम रिश्ते बनाइए लेकिन मुखलिसी से निभाइए, क्योंकि मोहब्बत तो बहुत से लोग आपसे कर सकते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। जिंदगी में इन 2 लोगों पर कभी तबसरा ना करो, जिनको तुम चुन लो और जिनको तुम छोड़ दो। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार बनता है। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दे होते थे, और ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसे होते थे। परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ठोकर उन्हीं को लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। बुराई की तरफ नफ्स दौड़कर जाती है, जबकि नेकी की तरफ उसे घिसट कर लाना पड़ता है। इस दुनिया में माँ बाप की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जगह जगह पर जलील और रुस्वा नजर आए। जिस घर में दीन और नेक माल हो वो घर तहजीब और इंसानियत का बेहतरीन नुमाइंदा होता है। मांगने वाले की लोग मदद तो करते हैं मगर पसंद नहीं करते, क्योंकि पसंदीदगी हमेशा खुददारी को मिलती है। जब आपका ज़मीर मलामत करना छोड़ दे तो समझ लो कि अब इंसानियत आप में ख़त्म हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सलामत रहना चाहे वो अपनी ज़बान को महफूज रखे। जो वक्त गुज़र गया उसको याद करके कुछ असूल बना ले तो जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। इस दुनिया में अक्ल वाला अपने काम पर और वहीं जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा दे तो समझ लो कि ये दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त है।